हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द अर्लियर लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दी some of the problem regarding electric field and electric field lines of NCERT textbook. Now in this lecture we are discussing one important topic of chapter number 1, that is electric dipole moment. So in this lecture we have learned three basic theory regarding electric dipole moment, and same kind of theory you may have in magnetism also. So this theory is very important not only examination point of view, बट यदि आपको ये थियरी आती है तो आपको चैप्टर 4 और 5 में जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी। सो इसके बेस वो है, सो आपको ये प्रॉपरली लर्न करना है। सो लेट्स स्टार्ट दी थियरी नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो फ्रॉम द डायग्राम you understand this definition. From the diagram you understand this definition. So two charges having equal magnitude and opposite direction, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, separated by some distance, that distance is 2a, is called the electric dipole moment. Dipole means two, di means two, ऐसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। तो लो पोल के यहाँ पे टू पोल इज गिवन, वन इज माइनस क्यू, अनदर वन इज प्लस क्यू, separated by 2a distance. So this definition is clear with the help of this diagram. Now electric dipole moment is represented as vector p. This vector physical quantity and its direction is negative q to plus positive q. इस डायरेक्शन इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये आपको याद रखनी है। माइनस टू प्लस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका इक्वेशन ये है, वेक्टर p इक्वल टू magnitude of any one charge, that means q, and the separation between that two charges is 2a. So we can simply say that vector p equal to 2a into q. What is the unit of this electric dipole moment? Coulomb into meter. चार्ज का कूलम और 2a डिस्टेंस है उसका मीटर। नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p? so meter means L1 and for coulomb A1 T1, so we can write L1 A1 T1. Similar way, if we focus on this diagram, what is net charge? Minus q and plus q, so net charge is 0. What is direction? Negative to positive. Be focused over here, net charge is 0, net field never be 0, because two charges are separated with a distance. So electric field non-zero, total charge is 0. And last point of this theory, that is point dipole. यदि आपको पूछा जाए 1 मार्क्स में what is the definition of point dipole, so the dipole which represent one point, that means there is a separation. The separation between minus q and plus q is some 2a. If we get that 2a tends to 0, that means both the charges are overlapping and the value of each charge is infinite. So in that case, in this condition, that dipole is behave as a point dipole. As the name suggests, point, that means distance between that two given charges is 0, tends to 0. Actual में what are the example of electric dipole moment? Na plus Cl minus. जो NaCl का मॉलिक्यूल है उसमें Na प्लस होता है, Cl माइनस, और दो मॉलिक्यूल, वन इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज, सेपरेटेड बाय सम 2a डिस्टेंस। सिमिलर वे HCl, H प्लस एंड Cl माइनस, ऐसे आप इसे पढ़ सकते हो। नाउ सेकेंड थियरी ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये वर्ड है एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, ये आपको ध्यान में रखना है, एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। सो उसके बारे में आप डायग्राम को अच्छी तरह देख लो। यदि डायग्राम आ गया तो वो क्या मैथमेटिकल स्टेप है वो आपको खुद ही आएंगे। ये पूरी सिस्टम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, माइनस क्यू प्लस क्यू, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस टू प्लस क्यू। नाउ टोटल सेपरेशन इज 2a, दिस इज द मिड पॉइंट, सो सेपरेशन इज डिवाइड हाफ a and a. नाउ this line, this dotted line which is passing through the axis of a dipole, that's why the name is given axis of a dipole. If we select one point r, so at point r,
through a system is made up of two charges, one is negative charge, another one is positive charge. So what is net electric field at r, that we have to calculate. and ये r पॉइंट है वो किसका पॉइंट है, तो एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, यही क्वेश्चन में दिया है. सो एक्सिस ऑफ अ डाइपोल पे हमने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, उसको नाम दिया r, और ये r पे प्लस क्यू और माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज that is E is proportional to 1 upon r square. E is proportional to 1 upon r square. प्लस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड r पे जनरेट होगी उसका मैग्नीट्यूड मैंने ज़्यादा बताया है, और माइनस के लिए जो r पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड कम है. और डायरेक्शन क्यों ऐसी बताई है, तो देख लो. ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट रेडियली आउटवर्ड, सो आउटवर्ड. ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट दिस पॉइंट r, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड. And why this is higher magnitude? Because this separation is lower. So separation is lower, electric field is higher. So E plus having higher magnitude, E minus having lower magnitude. Two vector both are in opposite direction. So what is net electric field at R? Subtraction. Okay, subtraction होगा. Now diagram आपको पता चल गया. अब हम calculation की ओर बढ़ते हैं. What is electric field at point R due to plus Q and minus Q charge? सो ड्यू टू प्लस क्यू हमने वही वाला फॉर्मूला यूज किया है, ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. सो के क्यू एंड व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट आर टू प्लस, ये वाला डिस्टेंस प्लस क्यू से आर का, ये टोटल है 2 है. सो ये हाफ होगा ए, और ये हमने एज्यूम कर दिया एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस सेंटर से आर का एक्स है. तो इतने में से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा. तो वो कौन सा है, एक्स माइनस ए. और E माइनस के लिए कौन सा होगा, x प्लस ए. सो x प्लस ए का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट. ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू बोथ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज, दैट इज E प्लस माइनस E माइनस. ओके, y नेगेटिव किया वो आप यहाँ से देख सकते हो, ये हायर है ये लोअर है. सो हायर माइनस लोअर. ओके, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी पुट नेगेटिव साइन. बाय पुटिंग दिस टू वैल्यू, इफ वी टेक के क्यू कॉमन, नाउ सिंप्लीफिकेशन. यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर की मार्कर यूज की है ताकि आपको अच्छे से ये पता चले. ये होल स्क्वायर है, उसको सिंप्लीफाई किया, बीच में नेगेटिव साइन है, आप सब लॉजिक जानते हो. ये तो बहुत इजी मैथ्स है, जो कैंसिल होता है वो मैंने कट किया है. 2ax 4ax, ये के क्यू एज इट इज, और ये डिनोमिनेटर भी एज इट इज. यहाँ पे आप गौर कीजिए, व्हाट इज आवर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला, वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर 2a इंटू क्यू. सो यहाँ पे हमको वो इक्वेशन यूज करना है. तो यहाँ पे मैं 4 का 2 पार्टीशन बनाऊंगा, 2 इंटू 2 4 एंड ए क्यू कॉमन. सो व्हाट इज दिस 2aq? दिस 2aq becomes p. This 2aq becomes p. Okay, now what is remaining? 2 2s are 4 and kx remaining, so 2kx. And in denominator one step we have to apply. X is very much greater than E. X is very much greater than E. ये हमको कैसे पता चला, तो इधर देखिए, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रॉम का टर्म है, और ये सेंटीमीटर भी यदि होगा तो एंगस्ट्रॉम है -8, और ये वाला है x 10⁻². तो -8 -10 और -2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस है, ये इसकी कंपेयर में कैसे होगा, बहुत ही ज़्यादा. तो हम ये पॉइंट में क्या किया, ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की कंपेयर में निगलेक्ट किया, तो ए स्क्वायर 0 हो गया, x⁻²⁴. सो क्या होगा, x⁴. ये x और x⁴ कट होंगे तो ये क्या आ गया, 2kp/x³, because we are putting the value of p is what, 2aq. So this is the net electric field on the axis of dipole, that is proportional to 1/x³. यहाँ पे गौर से देखिए, ये वाला न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो E is proportional to 1/x³ होगा. ओके, वो आपको ध्यान में रखना है. नाउ फाइनली डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड है, फाइनली वी आर फोकसिंग ऑन द डायरेक्शन. सो व्हाट इज द डायरेक्शन? सो उसके लिए आपको ये डायग्राम गौर करना है. यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में आई, टुवर्ड्स राइट साइड, और ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या आएगी, टुवर्ड्स राइट साइड. दैट मीन्स द डायरेक्शन इज
इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p, और वेक्टर p हमने कहाँ पे लिया है, टूवर्ड्स राइट। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, 3 और 4 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फाइनल फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है, व्हेन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, इफ दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल। ओके, नाउ थर्ड थियरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। ये हमारी डाइपोल है, उसका ये सेंटर पॉइंट है, उसमें पास वाली जो पास होती हुई वो लाइन है उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ये एक्सिस वाली, ये एक्सिस ऑन डाइपोल है। अभी हमको ये थियरी पढ़नी है, तो पॉइंट आर पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, ये कौन सी लाइन हो गई, ये वाली इक्वेटोरियल लाइन। ओके, सो minus q plus q, total distance is 2a, half becomes a, and minus q2 plus q, this is the direction of electric dipole moment. Now if we assume this as theta, this is also as theta, and with the help of Pythagoras theorem, if this one is a, this distance is r, so what is this two diagonal, under root r square plus a square from the Pythagoras theorem. Now due to this plus q, if we have to calculate net electric field at r, सो ये प्लस चार्ज है, सो रेडियली आउटवर्ड, सो ये डायरेक्शन होगी, ब्लैक मार्कर से दिखाया है वो ई प्लस। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड, सो ये वाली ब्लैक लाइन जो दिखाई है वो ई माइनस होगी, ये वाला ई प्लस, ये वाला ई माइनस। ओके, नाउ व्हाट इज टोटल एंगल, यदि ये थीटा है तो ये जेड होगा, ये थीटा है तो ये जेड, ये थीटा होगा, यहाँ पे भी जेड फॉर्म हो रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा। नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ई माइनस एंड ई प्लस, सो ई माइनस हैविंग टू कंपोनेंट, ई प्लस हैविंग टू कंपोनेंट, दैट वी हैव टू सी। सो फर्स्ट हम इस वाले के दो कंपोनेंट देखेंगे, ई प्लस, ये वेक्टर है ई प्लस, सो दैट हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज एडजेसेंट कंपोनेंट, वहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एडजेसेंट कंपोनेंट है ई प्लस कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, ई प्लस साइन थीटा। सेकेंड वन, ये थीटा है तो ये ई माइनस का ये वाला एडजेसेंट कंपोनेंट होगा ई माइनस कॉस थीटा, और ये वाला जो नीचे तरफ दिखा है ये वाला ई माइनस साइन थीटा होगा। तो हमने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए फ्रॉम द डायग्राम, वी कैन सी ऐसा हुआ, ये है ई प्लस साइन थीटा, यहाँ पे ई माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे दो वेक्टर मिले ई माइनस कॉस थीटा एंड ई प्लस कॉस थीटा, ये डायग्राम हमको मिला। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट nullify the effect of each other because e minus and e plus is same. Why same? E is what, k क्यू बाई आर स्क्वायर, बट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दैट्स वाई ये दोनों कंपोनेंट नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ई माइनस कॉस थीटा एंड ई प्लस कॉस थीटा। नाउ दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, So what is electric field at point R due to plus Q and minus Q charge is, both are same। अभी मैंने आपको पढ़ाया कौन सा वाला इक्वेशन यूज़ किया, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है सो अंडर रूट निकल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। नाउ फ्रॉम द डायग्राम वी कैन राइट व्हाट इज ई नेट, addition of these two component e minus cos theta plus e plus cos theta. What is e minus and e plus, both are this, so this term is common, kq upon r square plus a square. What is remaining, cos plus cos 2 cos theta. From the diagram what is cos theta, ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, ये वाला what is cos theta, adjacent upon hypo, so a upon under root r square plus a square, so a upon under root r square plus a square. By putting the value of cos theta over here we get दिस इज के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला टू मैंने यहाँ पे पुट किया है और कॉस थीटा की ये वैल्यू है मैंने यहाँ पे रखी। ओके, नाउ इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, सो 1/2 प्लस 1 क्या होगा 3/2। ओके, सो 2k क्यू इंटू ए। अभी हमको वो वाला इक्वेशन यूज़ करना है p इक्वल टू 2aq, p इक्वल टू 2aq। सो ये मैंने न्यूमरेटर को मॉडिफाई किया 2aq इंटू के,
what is 2a cube? P. So my answer is kp by r square plus a square raised to 3/2. Okay. Now again सेम वाली कंडीशन जो अभी हमने सेकेंड थियरी में पढ़ी, इफ r इज वेरी मच ग्रेटर देन a, उसका भी लॉजिक वहाँ पे पढ़ा ऐसा ही है. तो यहाँ पे स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो r की क्या पावर हुई 2, ये 2 कट हो जाएंगे, तो क्या हो गया r क्यूब. सो व्हाट इज माय आंसर? इनेट इन स्केलर फॉर्म इज kp बाई r क्यूब. तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों थियरी में e इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब. कौन से वाले केस में? डाइपोल के केस में इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब. नाउ अभी हम डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, उसके अलावा ये टॉपिक फिनिश होगा. सो डायरेक्शन के लिए आप डायग्राम को देख सकते हो. ये दोनों कंपोनेंट कौन से साइड है? लेफ्ट साइड. और हमारा पी वेक्टर कौन सी साइड है? राइट साइड. दैट मीन्स यदि मुझे पी के टर्म में यूनिट वेक्टर दिखाना है तो माइनस पी कैप इज अ यूनिट वेक्टर. ओके, सो दैट्स वाई वी हैव टू पुट यहाँ पे माइनस पी कैप, बिकॉज ये वाला लेफ्ट साइड है और ये डायरेक्शन राइट साइड है, वो दोनों अपोजिट है. उसके लिए हमने यहाँ पे माइनस साइन इसकी. सो व्हाट इज ई नेट? वेक्टर ई नेट इक्वल टू माइनस के पी बाई आर क्यूब इंटू पी कैप. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल. थैंक यू.